بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، میری آواز سنو سے آپ کا میزبان سہیل یوسفزئی حاضر خدمت ہے اور آداب بجا لاتا ہے. خواتین و حضرات، اس وقت ہم لاس اینجلس میں موجود ہیں اور یہاں کی ایک اورنج کاؤنٹی سے براہ راست ایک ایسا ایونٹ آپ کو براہ راست دکھا رہے ہیں جو لاس اینجلس MQM لاس اینجلس نے ارینج کیا ہے، اور یہ بابائے مہاجر قوم کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے ایک ایونٹ کا اہتمام یہاں پر کیا ہے. ایک پبلک ایونٹ ہے اور اس ایونٹ میں پورے لاس اینجلس کے گرد و نواح سے بہت بڑی تعداد میں ہر طبقہ فکر کے لوگ بڑی تعداد میں بہت شرکت کر رہے ہیں. اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایونٹ ہر سال LA چیپٹر جو ہے وہ کرتا ہے، اور اس دفعہ بھی یہ LA چیپٹر نے کیا ہے، اور اس کو اس دفعہ انہوں نے منسوب کیا ہے بابائے مہاجر قوم کے ساتھ، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے. تو اس ایونٹ کی ہم مکمل طور پر آپ کو لائیو کوریج دکھائیں گے، اور ہم یہاں پر موجود مختلف عوام الناس سے بھی گفتگو کریں گے. یہاں پر بڑی تعداد میں بچے بھی آئے ہوئے ہیں، بڑے بھی آئے ہوئے ہیں، بوڑھے بھی آئے ہوئے ہیں، MQM کے کارکنان بھی ہیں، ہمدرد بھی ہیں. ان سب سے ہم وقتاً فوقتاً گفتگو بھی کرتے رہیں گے اور یہاں پر ہونے والے ایونٹ کو دکھائیں گے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس ایونٹ میں ابھی تعارف وغیرہ کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، وہ ہو جائے گا. اس کے بعد یہاں پر MQM کے کارکنان نے ایک دعائیہ سیٹ اپ بھی رکھا ہے، جس میں جو ہے ایک دو نفل حاجات کی بھی ادا کی جائیں گی، اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے لیے، بابائے مہاجر قوم کے لیے، ان کی صحت کے لیے، پوری مہاجر قوم کے لیے، تمام مظلوموں کے لیے، تمام مظلوم پاکستان کے بلوچ، پختون، سندھی، بلوچی اور ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے پاکستانی مظلوم عوام کے لیے یہاں پر دعا کی جائے گی، ان کے لیے بات کی جائے گی. آئیے ہم آپ کو ادھر لے کے چلتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اس وقت بڑی تعداد میں عوام موجود ہے، اور یہ آپ سن رہے ہیں اس وقت MQM LA کے چیپٹر انچارج عاکف راجپوت تعارف کرا رہے ہیں، عوام سے گفتگو کر رہے ہیں. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت MQM کے سینٹرل آرگنائزر ریحان عبادت بھی موجود ہیں. اس وقت یہاں پر MQM کی سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کے رکن شاہد مصطفیٰ غوری بھائی بھی موجود ہیں. MQM کے تمام کارکنان موجود ہیں. تلاوت کلام پاک سے آغاز ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم. آمین. تلاوت کلام پاک شکریہ عبداللطیف بھائی. MQM LA کے چیپٹر کے لطیف بھائی کر رہے تھے. آغاز ہو چکا ہے اللہ کے بابرکت نام LA سے. چیپٹر کے انچارج مہمانان گرامی کو میں یہ بتانا عاکف چاہتا ہوں راجپوت کہ آج تفصیلات بتا رہے ہیں اس ایونٹ کی، اس پروگرام کی. یونائیٹڈ اسٹیٹ کی سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کے انچارج یہاں موجود ہیں اور سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی بھی موجود ہے. تو میں اپنے MQM USA سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کے انچارج ریحان عبادت بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اس پروگرام کے بارے میں ہمارے مہمانوں کو بتائیں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ریحان عبادت، میں MQM USA کا سینٹرل آرگنائزر ہوں. آج اس پروگرام میں ایک اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام میں میں نے شرکت کی ہے. آپ تمام مہمان حضرات کا، تمام ناظرین حاضرین جو اس پروگرام میں شرکت لائیں، میں اپنے قائد الطاف حسین بھائی کی طرف سے آپ تمام ساتھیوں کا، تمام مہمانوں کا، تمام ماؤں بہنوں، بزرگوں، بچوں، بھائیوں، دوستوں کا، سب کا، بہنوں کا، سب کا بہت بہت دل سے شکر گزار ہوں. آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں اس پروگرام میں. میرے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر شاہد مصطفیٰ بھائی بھی اس پروگرام میں موجود ہیں، میں ان کو بھی اس پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. اس پروگرام میں ہمارے پاس سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کے تمام اراکین جو بیشتر امریکہ کے ڈفرینٹ اسٹیٹ سے یہاں پر تشریف لائیں، میں ان تمام COC کے ممبر کو بھی ویلکم کرتا ہوں، جس میں ہمارے پاس اظہار بھائی واشنگٹن سے، نظام الدین بھائی ڈیٹرائٹ مشیگن سے، خورشید بھائی نیو یارک سے، یوسف سعید بھائی نیو یارک سے، رمضان کعبہ بھائی ہیوسٹن ٹیکسس سے، میں خود سینٹرل آرگنائزر مشیگن ڈیٹرائٹ سے،
اور ہمارے پاس سہیل یوسف بھائی شکاگو سے، یہ تمام سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کے ممبر یہاں تشریف لائیں. آپ کے اس پروگرام میں قائد تحریک الطاف بھائی کی طرف سے آپ تمام ساتھیوں کو، تمام دوستوں کو، مہمانوں کو انویٹیشن ملا ہے آنے کا. ایک بار پھر دل سے آپ لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگ اس پروگرام کو انجوائے کریں گے. جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور مہاجر قوم اور جتنی بھی مظلوم قومیں ہیں پاکستان میں، جو ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم آج دعا گو ہیں آپ تمام ساتھیوں کی، تمام مہمان حضرات کی موجودگی میں، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قائد کی، مہاجر قوم کی، جتنی بھی مظلوم قومیں ہیں، سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان، پشتون، سرائکی، ہزارہ وال، جتنی بھی پاکستان میں مظلوم قومیں ہیں جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلات کو دور کرے. ہمارے قائد الطاف بھائی کی اوپر جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کو ناکام کرے، ان کی عمر درازی کرے. آپ تمام ساتھیوں کی موجودگی میں اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے. ہم انشاءاللہ اس کے بعد نماز کی طرف جائیں گے، وہاں نماز کی ادائیگی کے بعد اس پروگرام کو باقاعدہ اوپن کریں گے. LA کے چیپٹر کے ساتھیوں کا میں بالخصوص یہاں پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. عاقب بھائی چیپٹر انچارج، ان کی سربراہی میں ان کی جو پوری کمیٹی ہے، احسن بھائی جوائنٹ انچارج، اس کے ساتھ نبیل بھائی، آصف فاروقی بھائی، معراج بھائی، لطیف بھائی، نومی بھائی، یہ تمام ساتھی جو یہاں کی، سیم بھائی، یہ جو کمیٹی ہے، ان کے علاوہ سیم بھائی، کاشف بھائی اور تسیم بھائی، وسیم بھائی، تمام جتنے بھی ساتھیوں نے یہاں پر محنت کی ہے اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں. بہت مہینوں کی کاوش ہے ان لوگوں کی اس پروگرام کو مینیج کرنے میں، آرگنائز کرنے میں. آپ لوگ یہاں پر تشریف لائیں. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی حامد بیگ بھائی، جنہوں نے بہت مدد کی ہے اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں، تمام ساتھیوں کی. ان تمام لوگوں کا دل سے شکریہ. سعید خان بھائی بہت دور سے تشریف لائے، اور میں اگر کسی کا نام بھول گیا ہوں تو معذرت، لیکن تمام لوگوں نے بہت محنت کے ساتھ، کاشف بھائی کا بھی نام میں لے چکا ہوں لیکن بہرحال یہ نام تو آتے ہی رہیں گے. بہت ساتھیوں نے بہت محنت کی ہے آپ تمام لوگوں کو یہاں پر جمع کرنے میں، خوبصورت محفل سجائی ہے. امید ہے کہ آپ تمام لوگوں کی دعائیں ہوں گی تمام مظلوم قوموں کے ساتھ. ہمارے قائد الطاف بھائی جنہوں نے آپ کو انوائٹ کیا ہے اس پروگرام میں، ان کے لیے دعائیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامد و ناصر رہے. آپ تمام لوگوں کا ایک بار بہت بہت شکریہ. جی مہاجر، جی الطاف بھائی، تھینک یو. معزز خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں میری آواز سنو، اور یہاں سے ہم براہ راست اس وقت لاس اینجلس سے براہ راست ہم آپ کو اس ایونٹ کا پورا نشریات دکھا رہے ہیں جو لاس اینجلس چیپٹر نے منعقد کی ہے، جس کا انعقاد کیا ہے. اور یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ ایونٹ متحدہ قومی منٹ کے قائد بابا مہاجر قوم جناب الطاف حسین بھائی سے منسوب کیا گیا ہے، اور ان سے اجازت یکجہتی کے طور پر اس پروگرام کو جو ہے وہ منعقد کیا جا رہا ہے. اور اس میں ابھی جیسا کہ سینٹرل آرگنائزر ریحان نے بھی بتایا آپ کو کہ ابھی دعائیہ بھی تقریب ہوگی، اور اس میں یہاں پر 2 رکعت نماز حاجات ادا کریں گے سب اپنے اپنے طور پر، اور اس کے بعد دعا کریں گے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے لیے، پوری مظلوم قوموں کے لیے، پاکستان کے غریب مظلوم عوام کے لیے جو ظلم و ستم کا شکار ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں، جنہیں کیپچر کیا گیا ہوا ہے، بالخصوص مہاجر عوام، پختون، بلوچی، سندھی عوام، جن کو پوری پاکستان میں بڑے ظلم و ستم کا سامنا ہے. ان کے لیے دعا کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کے مشکلوں کو آسان فرمائے اور پاکستان کے غریب مظلوم عوام کو ان کا حق ملے، ان کا اختیار ملے جو ان سے چھین لیا گیا ہے. ہم آپ سے ابھی یہاں وقتاً فوقتاً مختلف لوگوں سے جو یہاں آئے ہوئے ہیں ان سے بات بھی کرتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اس پروگرام کو دیکھتے رہیے. دیکھیں یہاں بہت بڑا اجتماع ہے، بہت سارے لوگ ہیں، یہ ہمارا کیمرہ بھی آپ کو دکھا رہا ہے، یہ کافی لوگ یہاں ہیں. اور یہ آپ کو بتایا چلوں کہ یہ گرد و نواح سے آئے ہوئے ہیں، لاس اینجلس کے مختلف باؤنڈریز سے، مختلف شہروں سے یہ لوگ سب یہاں آئے ہوئے ہیں اور بہت پرجوش ہیں، بہت خوش ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے لوگ، اور ہر طبقہ فکر سے لوگ یہاں پر موجود ہیں. اس وقت یہ اجتماع جو ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک تمام قومیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں اس اجتماع میں شریک ہیں. اور ابھی ہم آپ کو اس طرف بھی لے جائیں گے جہاں پر ابھی نماز، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 رکعت حاجات کی جو ہے وہ نماز ادا کی جائے گی اور پھر دعا بھی کی جائے گی. وہ بھی ہم آپ کو ابھی دکھائیں گے براہ راست.
मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो है हलीम की भी, यानी कि ये सालाना एक इज्तिमा यहाँ पर बाकायदगी से होता रहता है। ये LA चैप्टर गुज़श्ता 25 बरसों से ये हलीम का एक इज्तिमा करता है, और ये इज्तिमा इस दफ़ा इस इज्तिमा को अपने बानी और कायद अल्ताफ़ हुसैन से मौसूम किया है साथियों ने यहाँ के LA चैप्टर के, और उनके लिए इज़हार यकजहती के तौर पर इस इज्तिमा को आज ये देखें, आप देख रहे हैं ये हलीम यहाँ साथी जो हैं ये ख़ुद बना रहे हैं और ये घोट रहे हैं। मैं इनसे आपकी बात भी कराता हूँ। ये हैं MQM LA चैप्टर के मेराज भाई, ये देखें इनसे पूछते हैं, ये आप बताएंगे हमारे नाजरीन को कि ये हलीम की दावत आप गुज़श्ता 25 बरसों से करते हैं, इस दफ़ा आपने इसे अपना कायद से भी मंसूब किया है, तो क्या आप यहाँ किस तरह कुछ लोगों को, हमारे नाज़रीन को बताएं इसकी बैकग्राउंड। बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम। ये एक्चुअली इस साल हमारा 25th ईयर है, तो हमारी कहेंगे सिल्वर जुबली है, और हर साल की तरह इंशाल्लाह आपने देखा ये बेसिकली कम्युनिटी हलीम है। यहाँ हर कौम फिक्र से लोग आते हैं और बिल्कुल हमारे मेहमानों की तरह महसूस होके जाते हैं हमारी महफिल से, और हर साल की तरह आप देख लें इंशाल्लाह अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग तकरीबन 700-800 लोग तो आएंगे इंशाल्लाह। कायद अल्ताफ़ भाई की तरफ से बाकायदा दावतनामा जारी करते हैं आप लोग? इस दफ़ा पहली दफ़ा लॉस एंजलिस चैप्टर अपने प्लेटफॉर्म से ही हलीम कर रहा है, और ये कायद की तरफ से सब लोगों के लिए दावत है कि सब लोग आएँ, और मतलब सारी कम्युनिटी, कोई किसी भी कम्युनिटी से आ सकते हैं, और ये हलीम प्योरली भाई की तरफ से, अल्ताफ़ हुसैन भाई की तरफ से ये सबके लिए दावतनामा है, और ये ओपन इनविटेशन था। आप देख रहे हैं हर आप ये कह रहे हैं कि कायद का जो एक फ़िक्र और फ़लसफ़ा है कि मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, उस पर अमल कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, जो कायद का फ़लसफ़ा है उसी पे अमल कर रहे हैं, और उसी के तहत देख लें हर कम्युनिटी से यहाँ पर लोग आए हैं। ये थे मेराज भाई जो आपको बता रहे थे कि ये कम्युनिटी का प्रोग्राम है, अल्ताफ़ भाई की तरफ से होता है हमेशा, और ये वही अल्ताफ़ भाई का जो फ़िक्र और फ़लसफ़ा है अब हम आपको इस तरफ ले आए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे एहतमाम किया था, 2 रकात हाजात लोग अदा कर रहे हैं बानी और कायद अल्ताफ़ हुसैन भाई और पूरी महाजिर कौम के लिए, पूरे पाकिस्तान के मज़लूम आवाम के लिए अल्लाह के हुजूर ये लोग जो हैं ये अपनी यहाँ नफलें अदा कर रहे हैं अपने अपने तौर पे, और फिर मुश्तरका तौर पे दुआ भी मांगेंगे। और ये आप देखें ये अपने कायद से, अपने लोगों से मोहब्बत और इनकी मोहब्बत का इजहार अपने अल्लाह के हुजूर ये सजदा सर बसजूद हैं, और अल्लाह से अपने दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह हमारे कायद अल्ताफ़ हुसैन को दराज़ी उम्र अता कर, उनको सेहत तंदुरुस्ती अता कर, उनके ऊपर जो मज़ालिम उनकी कौम पर और उन पर जो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, सफ़ाक ज़ालिम इस्टेब्लिशमेंट जो उनके ख़िलाफ़ जो प्रचार कर रही है, झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है, जो मकरूह प्रोपेगेंडा कर रही है, उसका पर्दा चाक हो, और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तो उसका ख़ात्मा फरमा, उनकी पकड़ फरमा ऐसे लोगों की। और पाकिस्तान के जो गरीब मज़लूम अवाम हैं, जो पाकिस्तान की ज़ालिम अशराफिया से जो है वो कैप्चर हुए हैं, जिनके हाथों में पूरा पाकिस्तान को जो कैप्चर किया हुआ है, उससे निजात मिले किसी तरह। तो अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, मांगनी भी अल्लाह से ही चाहिए, बेशक वो इस पूरी कायनात का मालिक और खालिक है, वही ताकतवर है, वही सब कुछ है, वही इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला है, वही पकड़ करने वाला है, तो इसलिए मांगना भी उसी से है। ये आप देख रहे हैं मनाज़िर, और पीछे आप लोगों का जो लोग इसमें शिरकत के लिए हुए हैं, और हम आपको बताते चलें कि यहाँ इस इज्तिमा में ये एक ऐसा इज्तिमा है कि जिसमें लोग आ रहे हैं, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अभी जिस तरह की तादाद, अभी लोग और भी आ रहे हैं, जो ये तकरीबन 2-3 घंटे इज्तिमा चलेगा, तो इसमें मुख्तलिफ़ लोग आते रहेंगे, बहुत सारे लोग जाते भी रहेंगे, और ये इस सिलसिला 2-3 घंटे तक जारी रहेगा। इस वक्त ज़ोहर की नमाज़ की अज़ान हो रही है, सेंट्रल ऑर्गेनाइज़र MQM रेहान इबादत अज़ान दे रहे हैं, और उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ अदा की जाएगी।
मोज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं मेरी आवाज़ सुनो का लाइव कवरेज हम दिखा रहे हैं आपको लॉस एंजलिस से। लॉस एंजलिस चैप्टर ने जिस सालाना अपने हलीम का अरेंजमेंट किया है और इसको आज बाबा महाजर कौम जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई से मंसूब किया है। उनसे इज़हार यकजहती के तौर पर इस प्रोग्राम को उन्होंने मुनक़्क़द किया है। और ये देखें, आपको कैमरा दिखा रहा है, इस वक्त बड़ी तादाद में लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। लॉस एंजलिस के गिरदो नवा से बड़ी तादाद में लोग आए हैं और इसके अलावा MQM के ज़िम्मेदारान भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि मुख्तलिफ़ रियासतों से अमेरिका की आए हैं। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, शिकागो, ह्यूस्टन, डैलस, न्यू जर्सी और डिट्रॉइट। और हम आपको ये भी बताते चलें कि इस प्रोग्राम में, इस इज्तिमा में हर तबका फ़िक्र के लोग मौजूद हैं। उसमें सिंधी, बलोची, पख्तून, महाजिर बड़ी तादाद में यहाँ पर जो मुकीम हैं अमेरिका में, लॉस एंजलिस में, वो बहुत बड़ी तादाद में। तमाम बच्चे, बड़े बूढ़े, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। हम आपसे अभी थोड़ी देर में गुफ्तगू भी कराएंगे मुख्तलिफ़ लोगों के साथ। अभी हम आपसे यहाँ मुख्तलिफ़ लोगों से गुफ्तगू भी करेंगे। यहाँ पर ये कुछ लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये तारिक भाई हैं, तारिक ख़ान, और हमारे ये डॉक्टर साहब लॉस एंजलिस में वो मारूफ शख्सियत हैं यहाँ की। इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। आप बताएंगे कि इस हलीम का ये जो प्रोग्राम हो रहा है और ये अल्ताफ़ भाई के साथ सॉलिडरिटी के तौर पर इस प्रोग्राम को इस दफ़ा इन्होंने इनक़ाद किया है, इसलिए में आप क्या बताएंगे? बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। अपना तारुफ करिए। मेरा नाम डॉक्टर आबिद ख़ान है और मैं लॉस एंजलिस के इलाके में नेफ्रोलॉजी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हूँ। अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए तो यही कहेंगे कि हमारी तो उनसे बहुत पुरानी दोस्ती रही है। जिस ज़माने में उन्होंने MQM शुरू की थी और हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो उस ज़माने में वो हमारे पास आया करते थे और बड़ी मोहब्बत के साथ अपने साथ शामिल होने की दावत दिया करते थे। तो उस ज़माने में बस क्योंकि मसरूफियात बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और पढ़ाई की तरफ ज़्यादा टाइम गुज़रता था, तो पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा हम इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन फिर भी हमेशा अल्ताफ़ हुसैन साहब को सपोर्ट किया और उनकी तकरीरों को सुना और उनके लिए हमेशा दुआएं की, और अभी भी यही ख्वाहिश है कि वो खुश रहें। अच्छा, जो अभी आजकल उनकी वो ज़ुबानबंदी की हुई है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हम ऐसे मुल्क में इस वक्त बैठे हुए हैं कि जहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ राइट्स जो है ह्यूमन राइट्स के हवाले से बड़ा, यानी कि ये जो हैं ये एक तरह से कह लें कि फादर्स हैं इस हवाले से। तो आप समझते हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, जो यानी कि ज़ुबानबंदी की गई है, क्या वो दुरुस्त है? ये गलत नहीं हुआ है? हमें लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच को हमेशा से प्रमोट करना चाहिए और देयर इज़ नो रीज़न फॉर एनी ऑफ दोज काइंड ऑफ थिंग्स और एनी ऑफ दोज पॉलिसीज़। और आई थिंक पाकिस्तानी गवर्नमेंट शुड लुक इनटू दैट और हर एक को अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का मौका मिलना चाहिए, जैसे हम यहाँ पर करते हैं, और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता। हमेशा अच्छी चीज़ें इससे सामने आती हैं। हर इंसान को क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने की सलाहियत होनी चाहिए, और क्रिटिसिज्म अगर होता है तो उससे किसी मुल्क को और किसी पर्सनल इंसान को नुकसान नहीं होता, बल्कि फ़ायदा ही होता है। इससे बहुत फ़ायदा होता है और एंड इट शुड बी अलाउड। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं मेरी आवाज़ सुनो। मैं हूँ आपका होस्ट सुहेल यूसुफ़ज़ई, बराह रास्त लॉस एंजलिस से। अभी बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, आपको बता रहे थे कि अल्ताफ़ भाई के हवाले से उन्होंने बड़ी नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। हम अभी एक और अल्ताफ़ भाई के बहुत पुराने साथी से आपकी गुफ्तगू करते हैं, तारिक ख़ान भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तारिक है। सबसे पहले तो ये बात मैं कहूँ कि अल्ताफ़ हुसैन से एक नेचुरल मोहब्बत है जो बहुत पहले से, क्योंकि मैं और वो तकरीबन एक ही ज़माने में कराची यूनिवर्सिटी के अंदर थे
اور ہمارے ڈپارٹمنٹس بھی تقریباً برابر تھے. تو تقریباً روزانہ ہی ان سے ملاقات ہوتی تھی کلاسیں شروع ہونے سے پہلے صبح. پھر یہ ہے کہ وہ کراچی سے تعلق تھا ان کا, تو وہ بھی ہے. دیکھیے الطاف حسین صاحب کے نظریات سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے, بہت سارے لوگ ان کی پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن میں نے جب ایم کیو ایم کے منشور کو خاص طور سے دیکھا, ان کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ سب سے پہلے تو وہ کبھی کسی پاور میں انوالو نہیں ہوئے. اگر وہ چاہتے تو وہ منسٹر بن سکتے تھے, کم سے کم منسٹر تو بن سکتے تھے, یا گورنر بن سکتے تھے, یا فیڈرل گورنمنٹ میں کچھ کر سکتے, لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. دوسری چیز, امپورٹنٹ چیز ان کی, اگر آپ ان کا نہ صرف انہوں نے خود ایسا کیا بلکہ اپنے خاندان کو بھی اس سے دور رکھا. اپنے خاندان کو بھی دور رکھا, بالکل. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ کیا نام ہے ان کا, اگر آپ منشور دیکھیں تو وہ منشور ان کا بالکل, آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ایک مڈل اور لوور مڈل کلاس کی جو کیا نام ہے فینٹیسیز ہوتی ہیں, وہ منشور تھا وہ. اور جو پاکستان کے لیے ایک آئیڈیل منشور تھا کہ فیوڈلزم کے اگینسٹ, freedom of speech, liberalism. I used to be in the Pakistan Liberal Students in Karachi University, اور ہمارا تو نعرہ ایک ہی تھا کہ ہمارا لیڈر قائد اعظم یا ہمارا جھنڈا پاکستان کا جھنڈا, اور we were way above these religious politics or all those things. تو ان کا اگر منشور دیکھیں تو وہ بہت ہی کیا نام ہے, جو میرا جو آئیڈیالوجی ہے ذہن کی, اس سے بہت ملتا تھا, سمجھے نا. پھر میری ان کے ساتھ کوآرڈینیشن بھی نہیں رہی. جب نئی ایم کیو ایم وہاں پہ کراچی یونیورسٹی میں آئی تو ان کو جو ہیلپ درکار تھی وہ ایز اے پاکستان لبرل بایو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ وی پرووائڈیڈ دیم, جس میں ان کے ایڈمیشن کمپین سے لے کے, اور ان کو پھر کیا نام ہے ان کی ہیلپ بھی کی, کیا نام ہے یونیورسٹی کونسلرس میں ان کو سیٹ دلوانے میں بایو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ لبرلس نے ان کے ساتھ. تو الطاف بھائی کے ساتھ تو اب یہی دعا میری تو, کیونکہ ان سے محبت ہے, تو اللہ ان کو صحت دے اور جس مشن کے لیے وہ ہیں ان میں ان کو کامیاب کریں. لیکن یہ کہ اس میں پاکستان کی بہتری ہونی چاہیے. اور آپ کی بالکل صحیح بات ہے کہ فریڈم آف اسپیچ از ویری امپورٹنٹ, ناٹ فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف رائٹنگ, اینی وے آف ایکسپریشن should be free. The human rights. Yeah, human rights free. لیکن یہ ہے کہ وجہ جو ہے کیا نام ہے ہمارا ملک جو اتنی ترقی نہیں کر سکا, اس کی مین وجہ یہی ہے کہ آواز کو دبایا جاتا ہے. میڈیا کو دبا دو, اس کو دبا دو, جو کرٹیسائز کرے اس کو کیا نام ہے ٹریڈر کر دو, تو کرٹیسزم کوئی سہ نہیں سکتا. اب یہ ہے کہ اب چکر یہ ہے کہ وہی کرٹیسزم اگر بڑے صوبے کے لوگ کا کوئی پولیٹیکل پارٹی کا آدمی کرے تو وہ ہی گیٹ اوے ود دیٹ, لیکن وہی کیا نام ہے ایک چھوٹی مائنورٹی کا, جو اردو اسپیکنگ مائنورٹی کا آدمی کرے تو اس کو اٹھا کے آپ کیا نام ہے ٹریڈر کر دو, اس کو جیل کر دو. 25 سال سے آپ نے کراچی, یہ آپ روتے ہیں کہ کشمیر میں فوج آ گئی ہے, کراچی میں کب سے فوج بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر؟ پچھلے 25 سال سے یا 20 سال سے. اور کوئی امن وہاں پہ نہیں آیا, کچھ نہیں آیا, بلکہ میں نے سنا ہے آج کل حالات اور خراب ہو گئے ہیں وہاں پر کرائم ریٹ. تو وہ اس لیے نہیں آ رہا کہ آپ نے یہ سب فریڈم آف ایکسپریشن آپ نے بند کیا ہوا ہے لوگوں کا, اور جب تک آپ اس کو ختم نہیں کریں گے تو انشاءاللہ الطاف حسین کی میری دعائیں کہ وہ صحت مند رہیں اور اپنی پارٹی کو وہ چلائیں کامیابی کے ساتھ, اور برے وقت آتے رہتے ہیں, اینڈ انشاءاللہ ہی ول بی بہت شکریہ. معزز خواتین و حضرات, یہ تھے خان طارق جنہیں آپ ابھی سن رہے تھے. یہ بھی اس پروگرام میں آئے ہوئے ہیں, اور یہ الطاف بھائی سے کہ ابتدائی دنوں کے انہوں نے ابھی اپنی زبانی بھی آپ کو بتایا کہ جب الطاف بھائی نے اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا, شروع کی تھی, اس وقت سے یہ الطاف بھائی کو جانتے ہیں اور ان کے بارے میں ایک نیک خیالات کا اظہار بھی کر رہے تھے, ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے تھے. تو ہم جو ہیں, السلام علیکم. السلام علیکم. دیکھیں ہماری ایک بہن بھی یہ لاس اینجلس میں ہیں موجود, اور ان سے ہم پوچھتے ہیں الطاف بھائی کے بارے میں. اور یہ جو آپ آ رہی ہیں, یہ ہر سال یہ ایونٹ ہوتا ہے, اور اس دفعہ یہ ایونٹ ایل اے چیپٹر نے باقاعدہ طور پر جو ہے اپنے قائد سے منسوب کیا ہے, ان کے سے اظہار یکجہتی کے لیے جو ان کے ساتھ ان کی زمان بندی کی ہوئی ہے, ان کا کریکٹر ایسیسینیشن صبح شام وہاں پر پاکستانی میڈیا پر ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ ضرور میں بتاؤں گی. جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے. الحمدللہ یہاں ہر سال یہ الطاف بھائی کے اس سے جو نہیں ہم لوگ علیم کرتے ہیں, ہر سال ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ کیلیفورنیا میں, اور الحمدللہ بہت لوگ آتے ہیں یہاں پہ, بہت انجوائے کرتے ہیں, اور بہت قائد کے ماننے والے یہاں ہیں. اور جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے, اس لیے کہ ایک نے آواز اٹھائی ہے تو سب برے ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا, ہر قوم اچھی ہے, یہ قوم بھی اچھی ہے, یہ قوم کوئی بری نہیں ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह सब साथ चलते हैं, साथ करते हैं. अगर मुल्क को हम सब मिल के चलाएंगे तो बहुत अच्छा चलेगा, और अगर यही तासुब रहेगा तो मुल्क कभी कामयाब नहीं होगा. ठीक है. अच्छा, ये बताइएगा कि अल्ताफ़ भाई के हवाले से आप अभी जो उनके साथ जो मैंने जैसे आपको बताया कि अभी ये उनकी पूरी आवाज़ को दबा दिया गया है, उनके लिए पाकिस्तानी मीडिया बैन किया हुआ है उनको, और तो ये इस हवाले से आप क्या समझती हैं कि ये दुरुस्त है पाकिस्तान में? क्या इस तरह पाकिस्तान पनपेगा? बिल्कुल नहीं पनपेगा, इसलिए कि ये जो हो रही है ये बिल्कुल गलत हो रहा है. इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए. इसलिए कि अगर अल्ताफ़ भाई की आवाज़ दबा दी जाएगी तो कभी भी नहीं दबेगी, लोगों के दिलों में है. जिस वक्त अगर उन्होंने लब्बैक कह दिया तो ये कराची की ही आवाम सब एक साथ उठेगी. इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे मायने में ये कह रही हैं कि अल्ताफ़ हुसैन की आवाज़ बंद करने का मतलब पाकिस्तान में मौजूद 7 करोड़ महाजिरों की, बानियान पाकिस्तान की आवाज़ को बंद करने के मुतरादिफ है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. बहुत शुक्रिया मौजूद ख़ातिन हज़रात. हमारी बहन है कि यहाँ पर आपसे अभी गुफ्तगू कर रही थी, और इस प्रोग्राम में बहुत सारे लोग हैं, अभी हम वक्तन फ़वक्तन सबसे बात करते रहेंगे. अभी ये देखें, ये यहाँ अभी कितने बहुत सारे लोग यहाँ इस वक्त आ चुके हैं. बड़ा इज्तिमा हो रहा है, ये बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ हैं और हलीम खा रहे हैं. हमारे साथ यहाँ इमरान भाई मौजूद हैं. अभी हम इनसे पूछते हैं, ये बताएंगे आपको कि भाई अल्ताफ़ भाई के हवाले से, सलीम के हवाले से. जी माशाल्लाह, ये बहुत बड़ा इज्तिमा हमें नज़र आ रहा है, और ये इस बात का अक्कास है कि आप कुछ भी कर लें, आप किसी तरीके से भी कदगन लगा लें, इसी तरीके से लोग जिनके साथ जज्बाती तौर पर वाबस्ता होते हैं वो आज भी हैं. अगर जो लोग मेरी ये तस्वीर या वीडियो देखेंगे वो ये बात जानते हैं कि अपने कॉलेज के ज़माने से मैंने कभी भी बहुत दिल खोल के कभी भी अल्ताफ़ हुसैन या उनकी पॉलिसियों की हिमायत नहीं की, लेकिन उसके बावजूद मैं इस बात का हमेशा से कायल रहा हूँ, उनका सपोर्टर ज़रूर रहा हूँ, लेकिन इस बात का कायल रहा हूँ कि उनकी ताकत, उनकी अवामी ताकत, उनका अवामी असर और रसूख जो है, इन जो मसनूई तरीके से ना कभी ख़त्म किया जा सकता है, ना किसी और सियासतदान का किया जा सकता है. अगर जो लोग आज ये मजमा देख रहे हैं, या जो लोग अगर जिनमें हिम्मत है ज़रा सी, तो वो ज़रा सा उनको 10 मिनट आज भी कराची में बोलने दें. तो जो लोग इनके खिलाफ बात करते हैं, जो लोग ये असम्बली में जाके झूठे नाम से जाके बैठ गए, तो ज़रा हम इनको देखेंगे कि उनकी ज़मानत में भी जो है वो बचत देने वाला कोई नहीं मौजूद होगा. और दूसरा, आखिर में इस बात का ज़रूर इख्तिताम करूँगा अपनी गुफ्तगू से कि जिस दौर में जीना मुश्किल है, उस दौर में जीना लाजिम है. वाह, ये इमरान भाई ने देखें कितना बड़ी बात की है कि जिस दौर में जीना मुश्किल है उस दौर में जीना लाजिम है. और वो ये भी बता रहे थे साथ साथ कि अल्ताफ़ हुसैन को दुनिया की कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती, उनकी आवाज़ को, उनके लोगों को. मौजूद ख़ातिन हज़रात, हम आपको लॉस एंजलिस से बराह रास्त जो इवेंट हो रहा है लॉस एंजलिस चैप्टर ने जो किया है यहाँ पर, और इसमें आप देखें कि ये हलीम का एहतमाम होता है हर साल, और ये इस दफ़ा भी किया है साथियों ने. और इस दफ़ा इस हलीम के प्रोग्राम को, इस इवेंट को अपने कायद, अपने महबूब रहनुमा अल्ताफ़ हुसैन भाई से मंसूब किया है, उनसे इज़हार यकजहती के लिए किया है. अभी यहाँ उनकी दुआए सेहत के लिए, उनकी तंदुरुस्ती के लिए, उनकी कामयाबी के लिए, और तमाम महाजरों समेत तमाम पाकिस्तान के मज़लूम आवाम के लिए यहाँ पर 2 रकात हजात नमाज़ भी अदा की गई है और दुआ भी की गई है. अभी हम यहाँ वक्तन फ़वक्तन आपको मुख्तलिफ़ यहाँ पर जो लोग शरीक हैं उनसे गुफ्तगू भी करते रहेंगे. ये देखें कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ जमा हैं. एक बड़ा इज्तिमा है यहाँ पर. अभी हम ये देखें, बच्चे बड़े सब, और ये पूरे लॉस एंजलिस के गिरदोनवास से, मुख्तलिफ़ यहाँ की शहरों से, मुख्तलिफ़ काउंटीज़ से आए हुए हैं जो यहाँ जमा हुए हैं. इसके अलावा पूरे अमेरिका से MQM के कारकुनान और ज़िम्मेदारान भी यहाँ पर आए हुए हैं इस प्रोग्राम में, इस इवेंट में. हम आपको लिए चलते हैं इस वक्त यहाँ. मौजूद ख़ातिन हज़रात, आप देख रहे हैं मेरी आवाज़ सुनो, मैं हूँ आपका होस्ट सुहेल यूसुफजई. लॉस एंजलिस से बराह रास्त ये इवेंट हम कर रहे हैं, और इस वक्त हमारे साथ यहाँ शाहिद मुस्तफ़ा भाई मौजूद हैं जो कि MQM की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रुकन हैं. शाहिद मुस्तफ़ा भाई से गुफ्तगू करते हैं, वो ख़ुद भी लॉस एंजलिस में रिहाइश पजीर हैं. शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम. बताएंगे आप इज्तिमा के हवाले से और कायदे तरीक़ अल्ताफ़ भाई के हवाले से क्या मैसेज पैगाम देंगे? बस अल्ताफ़ भाई अगर इसको देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आदाब. और अल्ताफ़ भाई के नाम से आज LA चैप्टर ने ये हलीम का वो किया है, और लोग अल्ताफ़ भाई से मोहब्बत करते हैं. आप देख रहे हैं खुद ही के लोग जोक दर जोक मुसलसल आए चले जा रहे हैं. तो अल्ताफ़ भाई की तरफ से लोगों को दावत दी गई. अल्ताफ़ भाई की तो लोग मुसलसल आप देखें कि आए चले जा रहे हैं, और अल्ताफ़ भाई से किस तरह कौम मोहब्बत करती है ये देख लें. और ये
लॉस एंजलिस के लोग हैं और हमारी भी एक कैपेसिटी चैप्टर की इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है क्योंकि हम ये सब कुछ एक डोनेशन से उतरता है चैप्टर ये काम। तो लोग अगर हम बड़े पैमाने पे करते तो इसमें हज़ारों की तादाद में लोग आते। तो सोहेल भाई ये अल्ताफ़ भाई की लोग अल्ताफ़ भाई से मोहब्बत करते हैं, अल्ताफ़ भाई से प्यार करते हैं और जितना भी जुल्म ज़्यादती जो अल्ताफ़ भाई के साथ जो मीडिया ट्रायल जो उनके ख़िलाफ़ एजेंसियों ने जो कुछ भी पिछले 30 साल से 32 साल से 40 साल से जो उनके ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं उनको तनहा करने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंसियां अरबों खरबों रुपए अरबों डॉलर करोड़ों डॉलर खर्च करके भी कामयाब नहीं हो पाई। ये अमेरिका है, यहाँ आप देख लें। अगर इसी तरह मौका कराची, हैदराबाद और सिंध के शहरी इलाकों में अल्ताफ़ भाई की आवाज़ आए और अल्ताफ़ भाई को कुदरत, मैं इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं कहूँगा वो तो जालिम है, कुदरत जो मौका देगी और आज नहीं तो कल देगी तो आप देखिएगा कि लाखों से मतलब है 25, 30, 40 लाख लोग अल्ताफ़ भाई का खिताब सुनने के लिए मौजूद होंगे। ये अमेरिका की अवाम आपकी और लॉस एंजलिस की अवाम है ये। तो मेरा यही कहना है कि अल्ताफ़ भाई हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, हमारी उम्र लग जाए उनको लंबी हयाती की ज़रूरत है। ज़िंदा रहे नज़रिया, ज़िंदा रहे अल्ताफ़ भाई की वजह से ही कौम है, उन्होंने ही कौम बनाई, उन्होंने ही कौम को आगे लेके चले, उन्होंने ही कौम को शनाख्त दी, वही कौम को ज़मीन भी देंगे, अहले ज़मीन भी वही बनाएंगे। तो अल्ताफ़ भाई की बड़ी इस कौम के लिए अपनी 42 साल की ज़िंदगी उन्होंने बिल्कुल नौजवानी, लड़कपन, जवानी सब उन्होंने कौम पे निछावर की। 24 घंटे वो काम करते हैं पर कौम भी उनकी ऐसी माशाल्लाह ज़बरदस्त है कि अपने कायद को, अपने रहनुमा ये इज्तिमा बता रहा है कि कौम ने अपने कायद को नहीं छोड़ा है, कौम के साथ है। ये सुन ले इस्टेब्लिशमेंट, कौम सुन ले, देख ले इस्टेब्लिशमेंट। ये लॉस एंजलिस है और ये बहुत छोटे पैमाने पे हमने लोगों को दावत दी है क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते, वरना तो देख ले इस्टेब्लिशमेंट। और ऐसा ही मौका वहाँ जब आएगा तो बस वो दिन होगा इंशाल्लाह। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, ये थे शाहिद मुस्तफ़ा गौरी भाई जो कि MQM की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रुकन भी हैं और बता रहे थे बड़े पुरजोश अंदाज में कि देख ले इस्टेब्लिशमेंट आके खोल कर कि अल्ताफ़ हुसैन का चैप्टर क्लोज़ नहीं हुआ, तुम्हारा चैप्टर क्लोज़ हुआ है। ये एक छोटा सा इज्तिमा सिर्फ लॉस एंजलिस में अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वालों का। अगर पाकिस्तान में तुमने आवाज़ खोली, जिस दिन भी अल्ताफ़ हुसैन को मौका दिया, तुम्हें पता चल जाएगा कि अल्ताफ़ हुसैन की आवाज़ पर लाखों का एक बड़ा समंदर आवाम का किस तरह जमा होता है। तो हमारे साथ इस वक्त MQM USA के सेंट्रल ऑर्गेनाइज़र रेहान इबादत भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, आप बताएंगे हमारे नाजरीन को इस हवाले से? जी वालेकुम अस्सलाम सोहेल भाई, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने क़ायद तहरीक अल्ताफ़ भाई को एक ऐसा लीडर बनाया है कि आज आप सब देख सकते हैं कि जहाँ इस्टेब्लिशमेंट एक दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है, अल्लाह ताला जो है वहाँ 100 दरवाजे खोलता है। जहाँ मीडिया पे पाबंदी पाकिस्तान में और लंदन में जिस तरह से मीडिया एंकर करप्ट लोगों को भेज के जो वहाँ पर हरकतें नोटोरियस ISI कर रही है, आप देखें उसका रिज़ल्ट यहाँ पर कैसे खुल के सामने आया। अब आवाम को आप बंद कमरे में नहीं रख सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आवाम में शऊर पैदा हो चुका है। आवाम जो है वो पूरे पुरजोश तरीके से आज यहाँ शामिल है और पूरी आवाम को पता है कि आज हम किस मकसद के लिए जमा हुए हैं। तमाम आवाम जानती है कि आज हम सिर्फ अल्ताफ़ भाई से यकजहती के लिए यहाँ जमा हुए हैं। जो अल्ताफ़ भाई पे साजिशें की जा रही हैं इस्टेब्लिशमेंट और ISI की तरफ से, उन साजिशों को नाकाम बनाने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। हम UK के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बोरिस जॉनसन को ये परजोर मैसेज देते हैं यहाँ पर अपनी यकजहती के थ्रू कि देखें कि अल्ताफ़ भाई के चाहने वाले कितने हैं। अगर कराची में आपने सिंध में पाकिस्तान के सिंध के शहरी इलाकों में अगर आपने पाबंदी लगाई है तो अमेरिका में देखें किस तरह लोग बाहर निकले। Would you like to give your message in English language to the Prime Minister UK? Would certainly do. As I have mentioned on my many video logs and many of MQM's Altaf Bhai's, because he's not just a leader of one nation, he's the leader of all oppressed nation around Pakistan and everywhere. Everyone is sending their message through video logs. I would like to send another message to Mr. Prime Minister Boris Johnson, UK Parliament, Met Police and Scotland. Please see all this, what's going on here. Everybody is out from their house. Everybody is spending time here just to show solidarity with Mr. Hussain. He's the leader of 70 million Muhajir. He's the only voice against the atrocities and notorious ISI in Pakistan. He has been exposing their bad deeds and their support to terrorists and terrorist activities in Pakistan.
please take a look around and see how many people are out there and showing their unity with Altaf Hussain. Please take necessary step and do the fair trial with Altaf Hussain. Thank you. बहुत ही नज़र ये थे रेहान इबादत, सेंट्रल ऑर्गेनाइजर अमेरिका के, और जो आपको बता रहे थे, और अमेरिका और बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से भी उन्होंने अपील की, एक बार फिर वीडियो लॉग्स के ज़रिए भी कर चुके हैं, एक बार फिर की है उन्होंने कि वो बरतानवी हुकूमत ही नहीं बल्कि अमेरिका और दुनिया भर की ताकतें इस बात को समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान में महाजिर अवाम और ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के तमाम तबक़े फ़िक्र के लोग, बलोची, पश्तून, सिंधी, सब जुल्म का शिकार हैं। पाकिस्तान नोटोरियस लोगों के हाथों में है, इंतहा पसंद लोगों के हाथों में है, कैप्चर हो चुका है, और उसको उनसे आज़ाद कराने में पाकिस्तानी आवाम की मदद करें। इस वक्त हमारे साथ LA चैप्टर के चैप्टर इंचार्ज जो कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी MQM USA के मेंबर भी हैं, वो मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये 25 बरसों से ये जो प्रोग्राम ये बाकायदगी से करते रहे हैं, इस दफ़ा इस प्रोग्राम की बड़ी अहमियत इसलिए हो गई कि आपने इसको मंसूब कर दिया अपने बानी कायद अल्ताफ़ हुसैन भाई से, उनसे इजाज़त यकजहती के लिए, और ये अल्ताफ़ भाई के चाहने वाले इतनी बड़ी तादाद में जमा हुए हैं। ज़रा बताएंगे हमारे आवाम को। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जैसा कि आपने बताया कि 25 साल से ये ख़ास मौका है जो हमारे कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई की तरफ से ये दावत होती है, ये मेहमान नवाजी उनकी तरफ से होती है। हर दफ़ा हम हर साल करते चले आए हैं, लेकिन जो इस साल थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हुई कि मेरे रूहानी और इस कौम के जो फादर, जो कौम के लीडर हैं अल्ताफ़ हुसैन भाई, जो कुछ भी वहाँ पर इस वक्त ग्रेट ब्रिटेन में या इंग्लैंड में हो रहा है, तो उसके मुताबिकत से बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर हम लोगों ने ये अपने लोगों से रब्ता किया, और आप देख सकते हैं कि ये अभी लॉस एंजलिस के अंदर ये वो लोग हैं जो बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमने कहा कि हम इसको हम बड़े भरपूर तरीके से करेंगे, और आज सारे के साथ जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के साथ यकजहती। इन सब की अगर आप यहाँ पे किसी से भी पूछेंगे, सब की ये दिल से ये दुआ है कि ये अपील कर रहे हैं बोरिस जॉनसन जो प्राइम मिनिस्टर है। आई एम आल्सो रिक्वेस्टिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम बोरिस जॉनसन, दैट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। The Altaf Hussain or Mr. Hussain is my leader, 70 million Muhajir nation leader. And there is a guy named Mubashir Luqwan, and he called himself so-called journalist, but he is not journalist. He is the agent, and he is like in your country, and then he is doing everything wrong, and he's like a corrupt, and then I request Mr. Johnson, please stop him, because it's hurting my feeling. It's hurting right here almost 1,000 people. It's hurting. He's hurting everyone. He is blaming totally wrong. So Mr. Johnson, this is my request. Please take action and stop him. This is your country, and he is my leader is your citizen of United Kingdom. और ये जो यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, ये अल्ताफ़ भाई की तरफ से सारे मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, और ये आज इसको 25 साल हो चुके हैं। भाई अल्ताफ़ भाई की तरफ से सारे लोग यहाँ पे हमारे जो है नजरिया जिंदा रहे अल्ताफ़ जी, जिंदा रहे नजरिया अल्ताफ़, और हम ना हो हमारे बाद अल्ताफ़ अल्ताफ़ अल्ताफ़। बहुत अच्छे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हमारे साथ MQM USA की सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अरकान भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। महफूज़ हैदरी भाई मौजूद हैं। महफूज़ भाई अस्सलाम वालेकुम, ज़रा आप बताएंगे हमारे नाजरीन को, इस वक्त आप बड़ी तादाद में यहाँ लोग जमा हुए हैं, आप हमारे नाजरीन को बताएंगे कि क्या इज्तिमा है और अल्ताफ़ भाई के हवाले से क्या पैगाम आप सुनने वालों को देंगे जो दुनिया भर में लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया सोहेल भाई, ये अल्ताफ़ भाई के कारकुनों का वतीरा रहा है कि कोई काम शुरू करते हैं और अल्लाह का शुक्र है फिर वो एक रिवायत बन जाती है। जैसा कि आपने सुना कि 25 साल से ये हलीम की दावत यहाँ हो रही है, नामसाइद हालात हों, किसी किस्म के हालात हों, लेकिन ये मजमा, ये लोगों का जोशो खरोश इसी तरीके से यहाँ मौजूद है। इस तरह अमेरिका की बाकी दूसरी स्टेट में जहाँ जहाँ हमारे चैप्टर्स मौजूद हैं जो अपने प्रोग्राम करते हैं, अपने इवेंट्स करते हैं, और आज की दावत खुसूसी तौर पे अल्ताफ़ भाई की तरफ से दावत है, दावत हलीम जो है अल्ताफ़ भाई की तरफ से है। और यहाँ लोगों का जो एक मजमा आप देख रहे हैं वो इस बात की गमाज़ी करता है कि लोगों के दिलों में अल्ताफ़ भाई किस तरीके से मौजूद हैं, और ये हर स्टेट्स में ऐसा हो रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान खुसूसन कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरों से
पाकिस्तान से अगर ये पाबंदी हटाई जाए जो कि अल्ताफ़ भाई पे तस्वीर, तहरीर और तकरीर की पाबंदी है, अगर वो हटती है तो मुझे यकीन है कि हज़ारों लाखों का जब मजमा था वहाँ आप देख सकेंगे। मल्टीप्लाई हो चुका है। एब्सोल्युटली, पहले होता था एब्सोल्युटली, लाखों का, अब वो बिल्कुल। लाखों से भी बढ़ गया। आप एक दफ़ा एक मौका तो दें, एक बातचीत को हल करें, किसी तरीके से उस चीज़ को ख़त्म करें जो आपने बैन लगाया हुआ है, वो बैन ख़त्म करके देखें। लोग जब यहाँ आ सकते तो वहाँ तो वो तादाद होगी कि वहाँ सर आप काउंट करेंगे कि कितने लोग हैं, लेकिन आपके जुल्म की वजह से वो वहाँ खामोश है। बहरहाल ये इज्तिमात होते रहेंगे। हमारी दुआ है कि अल्ताफ़ भाई पे जिस किस्म की भी पाबंदियाँ, जैसी भी चीज़ें लग रही हैं, इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में आप देखेंगे वो सब ख़त्म होगी और इसी तरीके से कराची के भी हालात होंगे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। ये थे महफूज हैदरी जो न्यू जर्सी से आए हुए थे, और हमारे साथ इस वक्त सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के रुकन इजहार खान मौजूद हैं जो कि वाशिंगटन से आए हुए हैं। उनसे पूछते हैं, बहुत पुराने एमकेएम के कारकुन हैं, अल्ताफ़ भाई के वफा परस्त साथी हैं, और इनसे पूछते हैं, इन्होंने बहुत वहाँ पे काम भी किया हुआ है, ख़ासतौर पे खिदमत खल्क़ के हवाले से बहुत ये इन्वॉल्व रहे हैं पाकिस्तान में उन दिनों में, तो ये बताएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम इज़हार भाई। वालेकुम सलाम। हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएंगे कि ये इवेंट के हवाले से भी और अल्ताफ़ भाई के हवाले से जो आपके पास तो बहुत कुछ है बताने को। देखिए, ये तो आप खुद देख सकते हैं और कैमरे की निगाह खुद बता रही है कि लॉस एंजलिस के अंदर जो ये तबका आया हुआ है, ये तबका डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, इसमें सब पढ़े लिखे लोग हैं जो अल्ताफ़ भाई की एक फ़िलासफ़ी पे बिल्कुल अमल करते हैं और उनको हमेशा उनके एग्री करते हैं। इस हालात के अंदर आप देख लें कि ये पब्लिक बता रही है अल्ताफ़ भाई सच्चाई, उनकी जो खिदमात हैं हमारे लोगों के लिए, इसमें यानी कि सब मिक्स लोग हैं, लेकिन अल्ताफ़ भाई की फ़िलासफ़ी पे यकीन करने वाले हैं और मेरा यकीन है कि वो कायद जो है हमारे। अच्छा, ये बताइए इज़हार भाई कि अल्ताफ़ भाई के ख़िलाफ़ अभी हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ और लोगों से भी, तो अल्ताफ़ भाई के ख़िलाफ़ जो मैंने एक और साहब थे उन्होंने भी कहा और मैं भी ये समझता हूँ कि उनके ख़िलाफ़ यानी इस पिछले 100-200 सालों के अंदर मुझे कोई ऐसा लीडर रहनुमा नज़र नहीं आता जिसके ख़िलाफ़ वो उस रियासत में जहाँ का वो बाशिंदा है उसके ख़िलाफ़ इतना बड़े पैमाने पर झूठ, लग़्व, प्रोपेगेंडा किया गया, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया हो, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जबकि उनकी खिदमात जो हैं उनको ज़ाहिर ही नहीं किया जाता, पाकिस्तान की मीडिया में बताया नहीं जाता कि उन्होंने क्या क्या खिदमात अंजाम दी हैं पाकिस्तान सिर्फ महाजिरों के लिए नहीं बल्कि दीगर कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी, और आप तो खुद इसके गवाह हैं। असल में है ये कि अल्ताफ़ भाई जो कि समंदर को फॉलो करते थे, लेकिन आर्मी कभी भी नहीं चाहती। हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि सबसे बड़ी जमात जो है वो आर्मी है वहाँ की और वो मॉनिटर करती है। अल्ताफ़ भाई ने जो काम करे वो आज तक किसी सियासी मंजराना पे किसी भी सियासी पार्टी ने नहीं करे। हॉस्पिटल बनाए उन्होंने, ब्लड बैंक बनाया उन्होंने, ट्रांसपोर्ट बनाया, यानी कि मैयत गाड़ियाँ, यानी कि आप नाम ले, लोगों की शादियाँ कराना, लोगों को पैसे बेचना, ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, वक्त गुजरता अल्ताफ़ भाई के लिए कोई नई चीज़ नहीं है ये जो हो रही है। अल्ताफ़ भाई ने तो जिस दिन से शुरू करा, अच्छा वाहिद लीडर हैं जो स्टूडेंट लाइफ से यानी कि उन्होंने शुरू करा। ये हर चीज़ अल्ताफ़ भाई की मुख्तलिफ है, यानी कि देखें ना, उनकी लोगों से अकेले चले, कोई बैकग्राउंड नहीं था। अच्छा, लोग जो मिसालें भी देते हैं ना, जो मिसालें देते हैं वो सही देते हैं, और ये थोड़ी सी टेम्परेरी फेस आया क्योंकि देखें ना, हक माशरे में, हिस्ट्री में जहाँ भी देखें हक को तो हमेशा दबाया गया। मेरा कायद जिंदा है, उसके फॉलोअर्स जिंदे हैं, उनको दुआ कराई गई। ये लोगों के जज्बात आपने देख लिए थे जब दुआ पढ़ रहे थे तो वो किस तरह दुआएं कर रहे थे, और अल्लाह ताला ने उस अल्ताफ़ भाई को खुसूसियत दी हुई है, उन्होंने मंजिल को हमें पहुँचाना है। सारी तकलीफ़ें वो खुद ही झेलने, हमें नहीं झेलने दे रहे, कुछ हमारी तरफ से कोई तकलीफ़ें नहीं झेल रहे, वो खुद दे रहे हैं। थोड़ी सी मुसीबत है, अल्लाह का शुक्र है, ये भी निकल जाएगी और इसी तरह हरा भरा रहेगा उनका चमन। उनके कारकुन, उनके दीवाने देख लें आप, इसमें सारे दीवाने हैं, जी अल्ताफ़ और जी मुत्तहदा। बहुत अच्छे। ये थे इज़हार खान भाई जो आपको बता रहे थे कि अल्ताफ़ हुसैन का नज़रिया, फ़िक्र और फ़लसफ़ा पूरी दुनिया में, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इस तरह फैल चुका है कि अब उसको रोकना किसी भी इस रोए ज़मीन में तो किसी में ताकत नहीं कि वो उस नज़रिए को मज़ीद फैलने से रोक सके। तो अल्ताफ़ हुसैन की खिदमात, अल्ताफ़ हुसैन भाई की अपनी कौम के लिए नहीं, तमाम मज़लूमों के लिए उनकी खिदमात जो हैं वो एक बिल्कुल एक ऐसी खुली किताब की तरह हैं कि जिसको कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। हम अभी और भी बहुत से लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त LA चैप्टर के बहुत ही सीनियर, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अल्ताफ़ भाई से मोहब्बत करने वाले हामिद भाई मौजूद हैं।
ان سے گفتگو کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں الطاف بھائی کے لیے اس اجتماع کے حوالے سے. میں کیا عرض کر سکتا ہوں, غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے, اس کی تشریح کیے دیتا ہوں کہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, آپ خود ہی دیکھ لیں. تو یہ پابندیوں کے خلاف ایک خاموش احتجاج ہے, اور یہ خاموش تو ہے مگر چپ نہیں ہے. اس کے اندر جو لاوا ابل رہا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا, اس کو دیکھنا پڑے گا, اور جتنی جلدی جو ذمہ دار ادارے ہیں وہ اس بات کو سمجھ جائیں کہ گراس روٹ لیول پہ ٹرو قائد کی آواز کو کچلا نہیں جا سکتا, دبایا نہیں جا سکتا. وہ آرٹیفیشل مینز ہوتے ہیں, اور حقیقت یہ ہے جو آپ آج دیکھ رہے ہیں. ان پہ لاکھ پابندیاں لگ گئی, ان کی تصاویر پہ پابندیاں لگنے کے باوجود, ان کی تقاریر پہ پابندیاں لگنے کے باوجود لاس اینجلس کا شہر کے لوگ امنڈ آئے ہیں آج صرف الطاف حسین بھائی سے سولیڈیرٹی دکھانے کے لیے, یگان حد دکھانے کے لیے, ان کی سپورٹ کے لیے. تو اس میں کچھ کہنے کی یوسف بھائی اور مزید ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو ہمارے احساسات ہیں وہ تو آپ کو لوگوں کی شکل میں یہاں نظر ہی آ رہے ہوں گے. یہ تھے حامد بھائی جو کہ بتا رہے تھے کہ یہ تو یہ جو آپ اجتماع دیکھ رہے ہیں یہ تو لاس اینجلس کا ایک بہت چھوٹا اجتماع ہے, اور یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ الطاف حسین سے لوگ آج بھی محبت کرتے ہیں, ان سے پیار کرتے ہیں اور انہیں چاہتے ہیں. تو معزز خواتین حضرات, ہم یہاں ابھی اور بھی لوگوں سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ یہاں پر ایک مقامی ہماری سسٹر ہے اینا, جو کہ امریکن بورن ہیں اور الطاف بھائی کے حوالے سے بات کرنا چاہتی تھیں. مجھ سے انہوں نے درخواست کی کہ میں یہ کچھ کہنا چاہتی ہوں. ہائی اینا, ہاؤ آر یو؟ I'm good. How are you guys? Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. So, for our viewers, I would like to ask you for what you are here. Do you know this event is going on? What's going on here? Oh, we're here because we're to support brother Altaf, and we're having a get together, you know, a Halim. So we're pretty much like doing it to support him, you know, with because he's a good man, and we're just here to support him. To show the solidarity with Altaf Hussain. Yes. You like him? Yes, I do. So, would you like to say something in Spanish, in your language? Of course. Buenas tardes. Estoy aquí para decir que estamos aquí para celebrar a Brother Altaf, y es un buen hombre y estamos aquí para apoyarlo y para decir que él es una buena persona y quiere ayudar a la comunidad de Pakistán. Good. Okay. One more question. You know very well aware of the human rights, like freedom of speech, freedom of expression in this America, in this United Kingdom, in Europe, everywhere. If any country violates these human rights given by God in any country of any human, is it good? Yes, it is. It's very good. No, I'm asking you that violation of human rights by the government, it's good, it's not good. You mean in Pakistan? Yeah. Yes, it is. That's where we're So the oppression, like atrocities with the people and ban on their voice, it's not good. You want to say this? The human rights violation? Oh yeah. It is good. It's good. Yeah. Okay. Thank you very much. Okay. Thank you. Bye. یہ تھی اینا جو کہ آپ کو خواتین حضرات ابھی ٹیکنیکلی ایک تھوڑا سا پرابلم ہو گئی تھی. کچھ دیر کے لیے توقف کے لیے آپ ہمارا یہ نشریات نہیں دیکھ پائے تھے. معذرت چاہتے ہیں اس کے لیے ہم, اور ہم دوبارہ آپ کے پاس آ رہے ہیں. دوبارہ ہم آپ کے ساتھ